السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم کچھ سنیں یا سنائیں اس سے پہلے مناسب ہی نہیں ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا و مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ تمام زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری ان بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقہ طفیل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو معزز سامعین، اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، گنبد خضرا کے تصور میں کھو جائیے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے آقا کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا موضوع ہم نے زبان کا صحیح استعمال، یہ موضوع چنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلمۃ الحق ہماری زبان پر جاری فرمائے۔ ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا، اس میں رب کریم، تمام کائنات کا خالق و مالک، ہم سب کا پروردگار، قرآن پاک میں سورہ کاف کی 18 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہیں بولتا ہے کوئی مگر بات یہ ہے کہ اس پر ایک فرشتہ نگراں مقرر کیا ہوا ہے۔ ہماری زبان پر بھی اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی بات ایسے نہیں بولی جاتی جس پہ اللہ نے ایک فرشتہ اس کے پہ نگراں کر کے نہ رکھا ہو۔ ہمارا ہر بول ریکارڈنگ ہو رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور ہم جو کچھ بولتے ہیں وہ سارا کے سارا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک فرشتہ ہی اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ تو زبان جو ہے، اور اسی کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کی بہت ساری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی بات کہہ دی کہ تمہارے بولنے پہ ایک فرشتہ مقرر ہے کہ تم جو کچھ بولتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، حضور پر نور
मुस्तफ़ा जाने रहमत ने भी फरमा दिया कि मुसलमान तो वो है। मुसलमान की डेफिनेशन बताई, मुसलमान की परिभाषा, मुसलमान की का मीनिंग ये बताया कि मुसलमान वो है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। न उसकी ज़ुबान से किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान को ईज़ा पहुँचे, न उसके हाथ से वो दूसरे मुसलमान को, अपने मुसलमान भाई को या अपने मुसलमान रिश्तेदार को अपने हाथ से ईज़ा पहुँचाए। अगर इसके बरअक्स क्या बात है कि अगर जो मुसलमान अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रखता और अपनी ज़ुबान से बेसोचे समझे आगे वाले इंसान को, अल्लाह के बंदे को कुछ भी उल्टा सीधा कहते रहता है, तो फिर वो अल्लाह के हबीब की नज़र में मुसलमान नहीं है। क्योंकि मुसलमान की डेफिनेशन वो बताई कि मुसलमान वो है जो अपनी ज़ुबान का, जिसकी ज़ुबान से और उसके हाथ से, दो चीज़ का, ज़ुबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो ज़ुबान से ऐसा महफूज हो कि उसकी ज़ुबान किसी की दिल आज़ारी न करे, उसके दिल में तकलीफ़ न पहुँचाए, उसके दिल में ज़ख़म न पैदा करे। उसकी ज़ुबान ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी नहीं है तो फिर वो हुज़ूर पाक की नज़र में मुसलमान नहीं है। और उसके हाथ से, उसका हाथ बेवजह किसी के ऊपर, मज़लूम के ऊपर वो जालिम बनकर अगर जुल्म करता है और किसी को बेवजह मारता पीटता है और अपने हाथ का गलत इस्तेमाल करता है, अल्लाह ने जो दी ताकत है उसकी ताकत का वो गलत इस्तेमाल करता है, तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते कि उसके बरक्स ये है कि वो फिर मुसलमान नहीं है। मुसलमान की शान ये है कि वो अपनी दोनों ये आज़ा जो है, एक तो ज़ुबान और एक तो उसके हाथ, उसको कंट्रोल में रखे, अपने कंट्रोल में वो रखे कि उससे दूसरों को तकलीफ़ ना पहुंचाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी पे एक चीज़ समझने की है कि तालीम और तरबियत जो है ना, ये दो अल्फाज एक साथ बोले जाते हैं। हमेशा किसी को जब इंसान बोलता है तो बोले से इसमें तो तालीम ही नहीं मिली, इसको तरबियत ही नहीं मिली, इस इंसान की तो तरबियत ही अच्छी नहीं हुई, इसको तो अल्लाह ने, इसके घर वालों ने तालीम ही नहीं दी। ये बार बार बोला जाता है, सासें अपने बहुओं को बोलती है, माँ, और जो हम एक दूसरे को जब देखते हैं, उनके जब बुरे काम देखते हैं तो बार बार यही बोला जाता है, इसे तो तालीम ही नहीं मिली, इसे तो तरबियत ही नहीं मिली, इसको तो दो लफ्ज़ है लेकिन एक साथ बोले जाते हैं, एक तो तालीम और एक तो तरबियत। तालीम तो इंसान मदरसों से और यूनिवर्सिटीज़ से और वहाँ मिल जाती है। तालीम कहाँ मिलती है? स्कूल्स में, मदरसे में, यूनिवर्सिटी में तालीम जो होती है ना, इल्म कहाँ सिखाया जाता है? मकतब में सिखाया जाता है हमें, मदरसों में और हमें यूनिवर्सिटी में और स्कूल कॉलेज में तालीम तो मिल जाती है, लेकिन तरबियत उनको उन जगहों से नहीं मिलती। पढ़ तो लेते हैं, डिग्रीज में बहुत ले लेते हैं, लेकिन तरबियत का मामला अलग है, जबकि दोनों को मिला के बोला जाता है। लेकिन तरबियत की बात उससे बरक्स है। तरबियत वो है कि जो किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलती, किसी मकतब मदरसे में भी नहीं मिलती और किसी स्कूल में भी नहीं मिलती। ये मिलती कहाँ पर है? उसके लिए कुछ शख्सियतों को खिदमत में रहना पड़ता। किस ख़ास लोगों की खिदमत में, अच्छे लोगों के सोहबत में जब इंसान रहता है तो फिर उस इंसान को वो क्या करते हैं, फिर वो आदमी को इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं तरबियत। तालीम तो यूनिवर्सिटी में मिल जाती है, कॉलेजों में मिल जाती है, लेकिन तरबियत के लिए किसी अल्लाह के ख़ास बंदे से जुड़ना पड़ता है। वो जो है वो बंदा जो होता है वो चाहे आलिम दीन होता है और या तो फिर वो मेन उसकी जो माँ बाप होते हैं, वो भी मेन तो सबसे पहले माँ बाप ही तरबियत के लिए ख़ास होते हैं कि माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो औलादें बिल्कुल अच्छी होती है। माँ बाप उन्हें बचपन से तरबियत, और सबसे बड़ी अच्छी तरबियत तो ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को अल्लाह का खौफ सिखाए। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का डर सिखाए, अल्लाह का डर पैदा करे उनके दिलों में। तो ये बड़ी अच्छी तरबियत है। ये तरबियत ऐसी है कि फिर वो बंदा गलत काम करता ही नहीं है। हर गलत काम करने से पहले वो ये जायजा करता है, ये देखता है कि ये कहीं अल्लाह नाराज़ ना हो जाएगा इसके अंदर, इससे अल्लाह तो मेरे इस काम से अल्लाह नाराज़ ना हो। तो इंसान का दुनिया में आना आसान है, लेकिन सही मानों में इंसान बन जाना बहुत मुश्किल काम है। दुनिया में तो हम अपनी मर्ज़ी से आए नहीं है ना, अल्लाह ताला ने भेज दिया है दुनिया में, लेकिन इंसान बन के रहना, कुछ लोग आते हैं दुनिया में, आते हैं, उन्हें मालूम ही नहीं पड़ता वो इंसान थे कि हैवान थे।
आते भी और चले भी जाते हैं, लेकिन ना कोई तरबियत होती है, ना कोई तालीम उन्हें मिलती है, और बस वो आते हैं, खाते पीते हैं और दुनिया पे जुल्म बर्पा करते हैं और अपनी मस्ती में जीते हैं और अपनी मस्ती में फिर मर जाते हैं। वो तो वहाँ जाके फिर उनकी आँख खुलती है, खबर में पहले आँख खुल जाती है, वहाँ पता लगता है तरबियत क्या चीज़ थी और तालीम क्या चीज़ थी, हमने इल्म हासिल क्यों नहीं किया। क्योंकि इल्म हासिल करना तो हर मुसलमान मर्द औरत आलिम बालिग के ऊपर फ़र्ज़ करार कर दिया। इल्म हासिल करेगा और इल्म वाला होगा तो तरबियत पा जाएगा इंशाअल्लाह, और तरबियत अच्छी होगी तो इल्म हासिल करेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ साथ चलती है। तो ये जो भी काम होता है, ये काम अंबिया किराम के ज़माने ज़िम्मे अल्लाह ताला ने दिया है, और जो ये बनता है, जो भी बनता है बनाता है वो पता पाता है। यह काम अंबिया किराम के ज़िम्मे था। तो दुनिया में इंसान को इंसान बनाने के लिए तशरीफ़ लाए थे। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को कमो बेश 1,24,000 नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में मबूस किए, सिर्फ किस लिए कि हमें इंसान बनाए, सही मानों में जीना सिखाए, अल्लाह का पता बताए, अल्लाह की इबादत कैसी करना कैसे बताए, हमें कैसा उठना कैसा बैठना, कैसा खाना कैसा सोना, कैसे दूसरों के फ़राइज़ अदा करना, कैसे अपने रब के फ़र्ज़ को अदा करना, किस तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करना। और इसके लिए अल्लाह ताला ने हम गुनहगारों पे इतना बड़ा एहसान अज़ीम किया कि हम तो बहुत ही किस्मत वाले कि अल्लाह ताला ने तमाम नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमारे लिए हादी बरक बना कर भेजा। आपने तो हमें सब कुछ सिखाया। आपने हमें उठना बैठना चीखना खाना, घर में दाखिल होना, किस तरीके से शोहर बीवी के रिश्ते को निभाना, किस तरीके से अपने बच्चों की तरबियत करना, किस तरीके से पड़ोसियों का हक़ अदा करना, किस तरीके से मेरे एक गोशा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हमारा मुनव्वर हो गया। हम तो कुछ भी नहीं थे, कीड़े मकोड़े से ऐसी बदतर ज़िंदगी थी, किसी को कोई अच्छा काम ही नहीं था, सब बस खा पी के गुनाह पे गुनाह कर रहे थे। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा और एहसान अज़ीम किया हम पर कि हमें इंसान बनाने में अल्लाह ताला ने अपने हबीब को भेज के मदद फरमाई। ये अल्लाह का करोड़ों करोड़ एहसान है। सुभान अल्लाह कि आप आए और बाहर आई और दुनिया में इंसान बनाने के लिए आप तशरीफ़ लाए। और जब दुनिया से पर्दा फरमाने लगे तो ये काम उनके वारिसों को अल्लाह ताला ने, किसके वारिस, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नबी जो है अपने पीछे कोई रुपया पैसा विरसे में नहीं छोड़ कर जाते, ये अपने पीछे आलिम दीन को छोड़ कर जाते हैं। अल्लाह के नबी के वारिस कौन है? अल्लाह के नबी के वारिस जो है वो आलिम दीन होते हैं। उलमा इकराम जो है ये नबियों के वारिस है। तो जो काम नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, लेकिन ता क़यामत तक आलिमों का सिलसिला, वलियों का सिलसिला शुरू रहेगा। और ये जो है हमारे हादी बरक है, हमारे लिए शरीयत के पासमान है। ये हमें शरीयत बताते हैं और शरीयत बताने के लिए अपने पास बुलाते हैं। ये अपने लिए इतनी मेहनत करते हैं कि भाई आप आओ और आप दीन सीखो, और क्या अच्छा है क्या बुरा है, अपने आप को निखारो, अपने अंदर की गंदगियाँ को दूर करो, गंदगियाँ ख़त्म करो और अंदर अपने नूर भर जाए। इल्म जब आता है तो दिल में नूर भर जाता है। इल्म जब आता है ज़िंदगियाँ रोशन हो जाती है, ज़िंदगियों में बहार आ जाती है जब इल्म आता है। तो अल्लाह ताला के हबीब के और तमाम नबियों के वारिस आलिम दीन है, उलमा इकराम है। इसलिए उलमा इकराम का अदब करना चाहिए और उनके साथ में मेल जोल करना चाहिए, उनकी सोहबत में रहना चाहिए। जो आलिम दीन की सोहबत में रहता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि देखो, एक तो दोस्तियाँ न किया करो। बुरों की दोस्ती तो ऐसी है कि उससे कुछ मिलता नहीं है, उल्टा जैसे मिसाल दी गई कि दोस्ती करो तो ऐसे ही करो कि जो अच्छे की हो, जो आपको कुछ सिखाए। आलिम दीन की दोस्ती जो है ना, उसकी सोहबत में आप जितनी देर बैठोगे आप अच्छी बातें सीखोगे। उसकी मिसाल इस मानिंद बताई, मिसाल को इस तरीके से बताया कि जिस तरीके से आलिम के पास बैठना इस तरीके से है कि जैसे खुशबू बेचने वाले की दुकान पे बैठना। खुशबू की दुकान है, इत्र की दुकान है, खुशबू की दुकान है, वो उसका दोस्त है, वो वहाँ जाके बैठता है। वो खुशबू तो देता नहीं है, लेकिन जब तक वो वहाँ बैठता है वो महकता रहता है, उसकी नाक में खुशबू आते रहती है। क्योंकि खुशबू न भी दे तो खुशबू दूर तक अपने बहुत सारे लोगों के दिलों को खुशबू राहत पहुंचाती है। तो ये खुशबू तो आती रहती है, उसको कुछ दे ना दे, लेकिन खुशबू उसको मिलते रहती है। और बुरों की सोहबत, बुरों की दोस्ती ऐसी है
کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروں کی دوستی وہ مانند ہے جیسے بھٹی جھونکنے والا، کہ وہ بھٹی کو جب جھونکتا ہے تو جیسی جیسی وہ بھٹی جھونکتا ہے اس میں سے کالا کالا دھواں نکلتا ہے، اور بندہ کوئی سفید کپڑا پہن کے وہاں بیٹھ جائے، اس کا دوست ملا تو کچھ ہی نہیں لیکن دھوئے سے اس کے کپڑے کالے ہو جاتے ہیں۔